Yeah, good morning, everyone. I'm Rohit Gupta, working as assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon. I'm in Department Applied Science and Engineering. Applied Science. I'm teaching you in semester 2 Computer Science and Engineering. My subject is probability and statistics. Today's topic is probability, means some basic probability. Understood? Okay. So let's start. In previous lecture we have discussed what is probability and some very basic example of probabilities. In this one we will discuss probability, some another examples. Okay, in previous lecture I have said that please uh, आप सेट थ्योरी का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी. ओके, अगर आपको सेट थ्योरी आ रही होगी तो आपको प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा. ओनली बेसिक थ्योरी, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे. अंडरस्टूड है? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो तो कि टेकन रैंडम 3 सैंपल्स, randomly taking 3 balls, then what is a random experiment? So that is one is unpredictable outcomes of an experiment is known as random experiment. What is unpredictable? Outcomes are unpredictable. Then that experiment is known as random experiment. Tossing off unbiased coin. Understood? Rolling off dice, drawing a card from the 52 cards. Means आपको एक कार्ड ड्रॉ करना है 52 कार्ड से, एक डाइस को रोल करना है, अनबायस्ड कॉइन को टॉस करना है. Sample space. The collection of all possible outcomes of an experiment is known as sample space, that is denoted by capital S. Understood? What is sample space? Collection of all possible outcomes of an experiment. The outcome of an experiment is known as the event. Mathematically, event is a subset of sample space. Understood? What is event? The outcomes of an experiment is known as event. Mathematically, event is a subset of sample space that is denoted by capital E. Now, probability. The probability of an event is defined as the ratio of favorable cases and the number of outcomes of experiment. As we have discussed in previous class, that probability is equals to favorable outcomes, favorable space upon sample space. Understood? Then probability is the probability of an event is defined as the ratio of favorable cases and number of outcomes of experiment. Probability function are properties of probability. The first property is the probability of a sample is equals to 1. Probability of any event is lie between 0 to 1. मीन्स किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा. मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E is equal to 0, then that event is called impossible event. Understood? अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो जाए, that means वो इवेंट क्या होगा, impossible event होगा. अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, then that event is called sure event. Understood? Probability. The probability of an event is defined as the ratio of favorable cases upon total number of cases. Understood? The outcomes are maybe mutually exclusive, maybe mutually exhaustive. That's another part. And then what is probability? Probability is an event is defined as the ratio of favorable cases upon total number of cases. In previous lecture, I have discussed that probability is equals to favorable space upon sample space. Understood? Now, properties of probability, that is probability of S equals to 1, sample space का, probability of E greater or equals to 0 to 1, probability of an event is if equal to 0. अगर किसी की probability 0 है, that means impossible event. अंडरस्टूड है? अगर किसी की भी प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की, दैट मींस इवेंट को मैंने ई से डिनोट किया है, दैट मींस अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, दैट मींस श्योर इवेंट. नाउ रिजल्ट, सम बेसिक रिजल्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी मींस अगर आपको वेन डायग्राम देखा है, देन जस्ट लुक एट दिस वन, दिस वेन डायग्राम. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक, अगर आपके पास ए है तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए में ये वाला पार्ट भी आएगा. अंडरस्टूड है? अगर ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो आउटसाइड ए,
मींस एक एक्सेप्ट ए यूनियन से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड है? नाउ अगर पूरे सैंपल स्पेस को मैं यूनियन मान लूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अंडरस्टूड? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट थ्योरम? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नाउ अनदर वन, एडिशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, ए यूनियन बी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अंडरस्टूड है? अगर मैंने बात करी ए यूनियन बी की, जस्ट लुक एट दिस वन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए यूनियन बी, लुक एट दिस वन। अगर मैंने ए यूनियन की बी की बात करी तो ए भी आएगा और बी भी आएगा, मींस दोनों सर्किल आएंगे ना ए और बी की बीच। तो अगर मैंने ए यूनियन बी की बात करी तो आप बताओ, अगर मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब ये पूरा सर्किल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब ये पूरा सर्किल, इसका मतलब ये पार्ट 2 बार ऐड हो गया। बट कितने बार आना चाहिए, 1 टाइम। तो मैंने इसीलिए दिस थ्योरम विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी, probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now look at this one. If A and B are mutually exclusive, mutually exclusive means A के elements और B के elements both are different. Understood? If I'm saying A and B are mutually exclusive, that means A intersection B equal to 0. Understood है? अच्छा, आप कभी मॉल्स पे गए होंगे तो वहां पे क्या होता है, जब आप किसी रिस्ट वॉच की मॉल पे जाते हो, देन ही इज सेइंग दिस वॉच इज एक्सक्लूसिव वॉच ऑफ और मॉल, मींस हमारे जो शोरूम की ये एक्सक्लूसिव वॉच है। अगर वो एक्सक्लूसिव है दैट मींस वो वॉच आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी मॉल्स में नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड है? मींस आपको वो वॉच उसी मॉल पे मिलेगी, इसके अलावा वो वॉच कहीं नहीं मिलेगी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करें, अगर तो मैंने इसका मतलब क्या है कि इफ ए एंड बी बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब नल, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0। अंडरस्टूड है? ये अच्छा, अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, दैट मींस क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ if there are three events A, B, C, then probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus A intersection C minus B intersection C plus probability of A intersection B intersection C. अंडरस्टूड है? अगर मैंने कहा कि A यूनियन B यूनियन C है, A B C है, उनका तीनों का यूनियन है, तो P of A, P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of A intersection C minus P of A B intersection C plus P of A intersection B intersection C if mutually exclusive, that means A B and C are mutually exclusive, that means A intersection B equals to 0, that means A intersection B is equals to null. तो probability of null set is 0. A intersection C is null, that means probability of null set is 0. B intersection is null, that means probability of B intersection C is 0, plus probability of A intersection B intersection C, that means A intersection B intersection C is also null, that means this also 0, that means A union B union C is equals to P of A plus P of B plus P of C. Understood? Now multiplication theorem for dependent event. If I'm saying if this is multiplication theorem for dependent event, if A and B are dependent event, simple, it's a case of conditional probability. Understood? कि अगर probability of B where A already occurs, उसका कुछ फॉर्मूला होता है, that is probability of B where A already occurs, उसका फॉर्मूला होता है probability of A intersection B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मींस जो नीचे गिवन होगा वो डिनोमिनेटर में ही आएगा, दैट्स इट। क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए ऑलरेडी अकर्स, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हियर ए इज अकर फर्स्ट। अंडरस्टूड है? पी ऑफ ए बी। अच्छा एक चीज बताओ,
अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी ऑलरेडी अकर्स, उसका फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। अंडरस्टूड है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं? पी ऑफ बी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए ऑलरेडी अकर्स इनटू पी ऑफ ए, या तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी ऑलरेडी अकर्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन सॉरी वेयर बी इंटरसेक्शन सी ऑलरेडी अकर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इनटू सॉरी ये दो बार रिपीट हो गया, probability of A where B intersection C already occur into probability of B where C already occur into probability of C. Now, independent event. If two events are independent, then we can say that probability of A intersection B is equals to probability of A plus probability of B. A intersection B intersection C is equals to probability of A plus probability of B plus probability of C. If A, B are two events, if A and B are two events, just look at this background, this Venn diagram. अगर A, B are two events, then find the probability of A intersection B complement. अगर A intersection B complement की बात करें भाई, तो just look at this one. A intersection B complement. This one is B. तो B complement means B के except सारा part. अंडरस्टूड है? ये ए वाला भी आएगा और ये बाहर वाला भी आएगा, बी के अलावा सारा पार्ट आएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दोनों में कॉमन कौन सा है? ए वाला पार्ट कॉमन होगा, बट ये बीच वाला पार्ट नहीं होगा क्योंकि बी में था ये। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिख सकते हैं? पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अंडरस्टूड है? अगर आपको सेट थ्योरी वेन डायग्राम आता है देन आप प्रोबेबिलिटी इजीली कर सकते हो, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी में सर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अंडरस्टूड है? सिंपल 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 सा। इफ एनीबॉडी सेइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, अगर बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, दिस वन इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में ए के अलावा सारा पार्ट आएगा, ये ए नहीं आएगा और इसके अलावा ये वाला भी पार्ट आएगा। अगर मैंने कहा बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये पार्ट नहीं आएगा बट ये पार्ट आएगा, ठीक है? बट दोनों में कॉमन, तो ना तो ये दोनों में कॉमन था, ना तो ये दोनों में कॉमन था, ना ये दोनों में कॉमन कौन सा था? बाहर वाला पार्ट। दैट मींस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आप लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अंडरस्टूड है? अगर मैंने कहा ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट वेयर बी ऑलरेडी अकर्स, दैट मींस क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अंडरस्टूड है? नाउ prove that probability of probability of A where B complement is already occur equal to probability of A if A, B are two independent events, because we know that the formula that probability of it's a conditional probability का formula क्या होता है? probability of A where B complement already occurs, इसका formula होता है probability of A intersection B complement upon probability of B complement। we know that probability of A intersection B complement का फॉर्मूला होता है probability of A minus probability of A intersection B। अंडरस्टूड है? probability of A minus probability of A intersection B upon, अगर आपका two events are independent then you can say that probability of A intersection B equal to P of A into P of B। means probability अगर independent है तो A intersection B equal to I have just a mistake, I think so, कि probability of A intersection B equal to, सर ये प्लस नहीं है, ये बाय मिस्टेक प्लस दिख रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन है, इट्स अ मल्टीप्लिकेशन P of A into P of B, इट्स अ मल्टीप्लिकेशन साइन P of A into P of B, probability of A intersection B intersection C equals to P of A into P of B into P of C। now put the value P of A 1 minus P of A into P of B। अगर P of A मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या ऊपर सर? 1 माइनस P of B। सर यहां देखो P of A कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस P of A, तो आप इसको लिखोगे P of A माइनस P of A इंटरसेक्शन B, P of 1 माइनस P of B
P of B complement को 1 minus P of B. If A and B are two independent event, then A intersection B equal to P of A into P of B. So P of A minus P of A into P of B upon 1 minus P of B. P of A common taken, so 1 minus P of B upon 1 minus P of B, then cancel out, then probability of A where B complement is already occur is equal to probability of A if A, B are independent event. If A, B are independent event. If A, B are independent event, the probability of A intersection B complement A intersection B, probability of A complement intersection B, probability of A complement intersection B complement are independent. Understood? Now, one example. 3 coins are tossed at a time when 3 coins are tossed at a time. Find the probability for the at most one head. Okay, first if I want to do solution, तो पहला काम क्या होगा मेरा? पहले इसका sample space बना. Okay, I have taken the sample space is equals to S equals to, if 3 coins are there, तो हो सकता है कि पहला coin head हो, दूसरा भी head हो, थर्ड भी head हो, यानी कि all are 3 are head. अगर दोबारा मैंने टेस्ट किया होगा तो पहला हेड हो, दूसरा हेड हो, मगर तीसरा टेल आ जाए. नेक्स्ट वाले में हो सकता है कि पहला हेड, दूसरा टेल, फिर टेल, फिर टेल 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 हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है और हेड टेल हेड हो सकता है. अंडरस्टूड है? अगर मैंने एक 3 कॉइंस मैंने टॉस करा एट अ टाइम, टॉस एट अ टाइम, देन क्या होगा? अगर 3 टॉस करे तो 3 टॉस में हो सकता है कि एक हेड आ जाए, फिर दूसरा भी हेड आ जाए, तीसरा भी हेड आ जाए, या तो हो सकता है एक हेड आ जाए, 2 टेल आ जाए, या 2 टेल आ जाए, एक हेड आ जाए, या पहला हेड आ जाए, दूसरा टेल आ जाए, तीसरा. ऐसा कितने इवेंट्स हो सकते हैं? टोटल 8 इवेंट्स. मैंने क्या कहा? x को डिनोट करते हैं, x लिख देना, दैट इज x डिनोट एज नंबर ऑफ हेड. क्या डिनोट करेंगे? x डिनोट नंबर ऑफ हेड. अंडरस्टूड? अगर मैंने कहा x डिनोट नंबर ऑफ हेड, दैट मींस मुझे कितने हेड चाहिए? एट मोस्ट 1 हेड. At most means maximum 1 head. That means either it will be 0 head or 1 head. अच्छा आप बताओ, मैंने कहा probability x is less or equals to 1. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, probability head is less or equals to 1. या अगर मैंने कहा at most 1 head, इसका मतलब या तो 0 हेड आ जाए या तो मैक्सिमम 1 हेड आ जाए, इससे ज्यादा हेड नहीं चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है. अच्छा आप बताओ, प्रोबेबिलिटी x लेस आर इक्वल्स टू 1 मींस x लेस देन 1 एंड x इक्वल्स टू 1. अच्छा लेस देन 1, तो अगर टॉस किया है मैंने, कॉइन 3 है, तो या तो 1 हेड आएगा, 2 हेड आएगा. अब 1 से कम हेड का मतलब 0 हेड. ये तो अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है. अगर मैंने 0 हेड की बात करी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 0 हेड, इसका मतलब क्या बचा? अगर एक भी हेड ना आए, इसका मतलब तीनों हेड आए, ऑल 3 आर हेड. तो मतलब x लेस देन 1 के लिए दैट मींस अरे नो हेड, तो मतलब तीनों टेल के लिए फेवरेबल किस कितना है? 1. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8. तो मतलब कितना होगा? 1/8. ये समझ में कैसे नहीं आया? नेक्स्ट वन, अगर मैंने कहा एट मोस्ट 1 हेड, या तो 0 हेड हो सकते हैं या तो 1 हेड हो सकते हैं. अच्छा 0 हेड के लिए तो 1/8 हो गया. अच्छा मैंने कहा 1 हेड के लिए तो 1 टोटल केसेस कितने हैं? टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 8. अब फेवरेबल देखना है, कितने चाहिए हेड? 1. ये 3 हेड है, ये तो काउंट नहीं होगा. कितने? 2 हेड है, ये भी काउंट नहीं होगा. एक ही 3 एक हेड है इसमें, यानी कि काउंट होगा, यानी कि 1. इसमें भी एक हेड है 2, और इसमें भी एक हेड है, यानी कि 3 इवेंट्स. तो 3/8. और कोई अगर मैंने कहा कि 0 हेड, दैट मींस क्या होगा? 0 हेड के लिए आप क्या करोगे? कितने 0 हेड किसमें है? 1 इवेंट, दैट इज ऑल आर टेल. तो 1/8. अगर मैंने कहा 1 हेड, तो 1 हेड के लिए कौन कौन सी कंडीशन है? एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है. दैट मींस 3 हेड, 3 कंडीशंस आर देयर फेवरेबल में. तो 3/8. तो टोटल कितना हो सकता है? 3/8 प्लस 1/8, तो दैट इज इक्वल्स टू 4/8. अंडरस्टूड है? ओके.
find the probability at least one tell, at least one tell। इसका मतलब तीन तो कॉइन को टॉस किया था, अगर मैंने कहा at least one tell तो इसका मतलब या तो one tell हो या two tell हो या three tell हो। अंडरस्टूड है? x ग्रेटर देन वन, at least one tell, तो कम से कम एक तो होगा ही, x ग्रेटर देन वन प्लस x इक्वल्स टू वन। अच्छा, x इक्वल्स टू वन दैट मींस 3/8। मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वाले क्वेश्चन कौन किया था। इसके बाद ग्रेटर देन वन, इसका आप बताओ। अगर मैंने कहा ग्रेटर देन वन यानी कि 3 वाला काउंट होगा, 2 हेड काउंट होगा, और ये 2 हेड काउंट होगा, ये 2 हेड काउंट होगा, 1 2 और ये 3 ये 4, यानी कि आंसर कितना आएगा 4/8 प्लस 3/8, आंसर 7/8। सेकंड क्या हो सकता है, इफ एनीबॉडी इज सेइंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल की बात करी गई, यानी कि मैं अगर ये निकाल लूं कि जीरो टेल निकाल लें और वन से सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी एटलीस्ट वन टेल मिल जाएगा। अच्छा, एक भी टेल ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8, और 1 - 1/8 दैट इज 7/8। ये सेकंड मेथड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ, अगर एंड की बात करें तो इंटरसेक्शन, और की बात करें तो यू, बट एंड की बात करें तो वो मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी प्रोबेबिलिटी केस में सम केसेस में मल्टीप्लिकेशन में होता है और यूनियन केस में प्लस में होता है, और नाइदर और के केस में कॉम्प्लीमेंट होता है, आइदर के केस में यूनियन होता है। नाइदर नॉर के केस में कॉम्प्लीमेंट यूनियन होता है और आइदर और के केस में यूनियन होता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल। आप ये कर लेना, एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल है, आप कर लोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रॉब्लम, सर ये गलत है, ये वाला पार्ट, ये मिस्टेक है। अंडरस्टूड है? अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स A B C, chances of solving it are 1/2, 1/3, 1/4 respectively। अंडरस्टूड है? तो आप बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। अच्छा, एक सेकंड, इफ 3 स्टूडेंट्स आर, 3 you are suppose that you all are 3 student A B C। अगर मैंने कोई प्रॉब्लम दी तो मैंने क्या कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अगर मैंने सॉल्व करने की बात करी, इफ यू ऑल आर 3 स्टूडेंट A B एंड C, सपोज A B C 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, इसका मतलब सॉल्व करने का मतलब क्या है, A कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, B C ना करे तब तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। B कर दे A और C ना करे, ये भी हो सकता है। C कर दे A B ना करे, ये भी हो सकता है, एक कंडीशन। दूसरा हो सकता है कि A B कर दे C ना करे, दूसरा। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, B C कर दे A ना करे, ये हो सकता है कि A C कर दे B ना करे, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अच्छा, एक ये भी हो सकता है कि A B C तीनों कर दे, तब भी हो सकता है। दैट मींस 3 कंडीशन है, या तो एक सॉल्व करे A B C में से, या तो 2 सॉल्व कर दे A B C में से, या तो तीनों सॉल्व कर दे। सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। अंडरस्टूड है? नाउ सॉल्यूशन देखो, probability of A equals to 1/2 is given, probability of B is equals to 1/3 is given, probability of C is equals to 1/4 is given। क्या बोला कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी है, ठीक। अच्छा, एक चीज बताओ, ऐसा तो भी कर सकते हैं कि A भी ना करे, A भी ना कर पाए, B भी ना कर पाए और C भी ना कर पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, मींस तीनों ना कर पाए और 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, इसका मतलब एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। अंडरस्टूड है? मींस हमने निकाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, neither A nor B nor C। Why we are multiplying this one? Because we know that अगर 3 पर्सन्स हैं तो सारे इंडिपेंडेंट होंगे ना, सबकी प्रोबेबिलिटी भी इंडिपेंडेंट होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर इफ 3 स्टूडेंट्स आर देयर समथिंग व्हाटएवर विल बी A B C, अगर A ने सॉल्व कर दिया इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी A की प्रोबेबिलिटी B और C पे डिपेंड करेगी, B और C हेल्प तो नहीं कर रहे ना, इसलिए A B और C पे डिपेंड नहीं है, दिस इज इंडिपेंडेंट। B and C also independent from A because
ए हेल्प तो नहीं कर रहा बी की, इसका मतलब बी की प्रोबेबिलिटी भी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ए बी सी आर इंडिपेंडेंट। इफ ए बी सी आर इंडिपेंडेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी इनटू पी ऑफ सी। हमने रख दिया इसकी ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 तो ए कॉम्प्लीमेंट 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 2/3, probability of C is equals to 1/4 तो probability of C complement 3/4. Now solve this one, then answer will be 1/4. Probability of not solving the problem is 1/4, तो solve होने की probability क्या होगी 1 minus 1/4. That's it. Understood है? समझ में नहीं आया? अच्छा अगर एक चीज है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होनी है तो इसका मतलब या तो एक करें या तो दो करें या तो तीनों कर लें। मैंने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी कोई भी सॉल्व ना करा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो पाए और उसको 1 से सबट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? नाउ अनदर क्वेश्चन, a bag contains 30 random balls, 30 balls from 1 to 30, number 1 to 30. One ball is drawn at random. Find the probability that the number on the ball will be of multiple of 5 or 7. Means probability किसकी निकलनी है, या तो 5 का हो या तो 7 का। Multiple of 3 or 7, या तो 3 का मल्टीपल हो या तो 7 का। अच्छा बताओ, मैं एक काम कर सकता हूं कि इसको दो मेथड से लगा सकता हूं, या तो हम सिंपल मेथड से लगाएं कि प्रोबेबिलिटी एक सेट फेवरेबल, टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल सेट क्या होगा, सैंपल सेट 1 to 30 सारी बॉल, मतलब उसकी वैल्यू कितनी 30 हो सकती है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मल्टीपल ऑफ 5 और 7 का एक सेट बना लो, 5 7 10 15 तो 30 तक में ही बन जाएगा। दैट मींस टोटल कितने हो जाएंगे, ये इवेंट कितने होंगे फेवरेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मींस 10/30, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1/3। अच्छा इसी तरह इसको मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूँ, मतलब ट्रेडिशनल मेथड से, कि अगर मुझे मान लो ये मेथड नहीं आता, ये ऊपर वाला, तो हम ट्रेडिशनल क्या होगा कि मैं इसको, अगर मैंने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 और 7, मींस 5 के मल्टीपल को मैं ए सेट से डिनोट करूंगा और 7 के मल्टीपल को बी से, तो मैं और लिखा है, इसका मतलब ए यूनियन बी, अरे अंडरस्टूड है ना, और होगा तो ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो मैंने ए को माना मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 10 15 20 25 30, बी को मैंने मल्टीपल ऑफ 7, तो 10 7 14 21 21 28, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा 6/30, दैट इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4/30। अंडरस्टूड? अच्छा मैंने कहा कि अगर मुझे ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट मींस हमें पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अंडरस्टूड है? बट अच्छा अब देखो कि ए इंटरसेक्शन बी में, ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू null 5, so that A and B are mutually exclusive event। अरे अंडरस्टूड है ना, अगर A इंटरसेक्शन B 5 है, that means it must be mutually exclusive। फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B equal to probability of A plus probability of B, then 10/30, then answer will be 1/3। सेकंड वन कि find the probability of multiple of 3 or 7, तो 3 और 7 का देख रहे हैं, 3 6 7 रख लेंगे तो कितनी वैल्यूज होंगी 13, तो 13/30। सिमिलरली दूसरे मेथड से करेंगे तो ए मानेंगे 3 के मल्टीपल को, बी मानेंगे 7 के मल्टीपल को, तो 10 और 4 एलिमेंट आएंगे और एक एलिमेंट कॉमन होगा, तो 13/30। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, a bag contains 8 white balls, 4 red balls at random. Find the probability of 2 red and 3 white of them। अंडरस्टूड है? अगर मैंने कहा एक बैग कंटेन करता है 8 व्हाइट बॉल और 4 रेड बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स, 5 बॉल ड्रॉ करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड एंड 3 व्हाइट ऑफ देम। अच्छा अब बताओ, अगर मुझे 5 बॉलें निकालनी है, कितनी बॉल है टोटल, 12 बॉल्स है, तो पहले मैं इसका फिगर बनाऊंगा, कल मैं बताऊंगा कैसे फिगर बनाते हैं, ठीक है, उससे भी समझ में आएगा कि अच्छे से। आज एक क्वेश्चन देख लो, फिर हम कल डिस्कस करेंगे। एक फिगर बनाओगे, मैंने बताया था एक अर्न बनाओ, एक बैग बनाओ, उसमें 5 बॉल्स आप
व्हाइट, 8 व्हाइट और 4 रेड डाल दो। 5 बॉल अगर ड्रा करोगे तो 12 में से 5 ड्रा करना, दैट इज 12 C5। व्हाई वी आर यूजिंग C5, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग P5? अब बताओ, बॉल्स आर आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल है कोई चीज, उस केस में आप सी यूज करोगे, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन। मीन्स हमने क्या किया, उसको चूज मतलब पिक नहीं किया। अगर पर्सन्स होते तो हम पिक करते, सबका ऑर्डर डिफरेंट होता, क्योंकि सारे पर्सन्स आर डिफरेंट, बट बॉल्स आर आइडेंटिकल, सो वी आर यूजिंग हियर सी। 12C5, दिस इज योर सैंपल स्पेस। अच्छा बताओ, हाउ मेनी बॉल्स आर व्हाइट? अ बैग कंटेन्स 8 व्हाइट, तो कितनी व्हाइट चाहिए मुझे? 2 रेड एंड 3 व्हाइट। तो कितनी रेड है? 4। 4 में से कितनी निकालनी है? 2। 4C2, 8C3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाल ली 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4C2 को कैसे सॉल्व करेंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो जब 4 से 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 3 to 6 आ जाएगा। 8C3 क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 8 7 6। तो 3 फैक्टोरियल 6 कैंसिल, तो 8 into 7 बचेगा। When we are solve this one, then answer will be 14/33. Now look at this. This is 14/33. Now this is the last question. A bag contains 6 white, 4 black balls. Second bag contains 4 white and 8 black balls. One of the bag chosen at random. Okay, ये अभी समझ में नहीं आएगा, मैं इसको कल फिगर से ड्रा करके दिखाऊंगा। अंडरस्टूड है? सो आज यही तक करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।